Hello friends, welcome to my channel Economica. I Dr. Gopal V. Saraswat welcome you all to my channel. Today the topic for discussion is Likert scale response analysis using Microsoft Excel. तो Likert scale हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था हाउ वी आर गोइंग टू कोड आवर responses that we have collected using the questionnaire survey. तो रेस्पॉन्सेज हमारे कोड हो चुके हैं और कोड होने के बाद हमारा फर्स्ट जो टास्क है वो है एनालिसिस का। आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो केवल लिकर्ट स्केल एनालिसिस है, जहां पर हम केवल लिकर्ट स्केल फॉर्म में जो हमारे क्वेश्चन आयर थे के अंदर रेस्पॉन्सेज हैं उन्हीं को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर दीज लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू एनालाइज देम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Here in my research, I use a Tupperware product based questionnaire survey, जहां पर मैंने कुछ लिकर्ट स्केल में क्वेश्चंस के रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए। मेरा पहला क्वेश्चन था Tupperware products are made of state of art technology। अगर मेरा रिस्पोंडेंट एग्री करता है तो he will take on strongly agree, otherwise if he is strongly disagree with my point of view he will take on the first option. So like this I have a 5 options: strongly disagree, neutral, agree and strongly agree. So this is 1, 2, 3, 4, 5. This is the code I have given to these variables. Moving ahead, my next question was Tupperware products are ideal for gift, and similarly my respondent will tick on one option he completely associates with. The third question was Tupperware products are not available in different sizes. Fourth question, Tupperware products are available in attractive colors. And finally, the last question is Tupperware products are not value for money. So I asked these 5 questions. I am going to check whether my respondents, what kind of thinking they are having for Tupperware products. So I floated this questionnaire, I collected some responses, and I am going to just now analyze these responses as the Likert scale response analysis. So let's start that. So here you can see that I have the responses for these 5 questions. First is my respondent ID. Here you can see that I have 29 respondents. First question was state of art technology. So agree, neutral, every respondent have given and recorded their responses. दूसरा क्वेश्चन था Tupperware products are ideal for gifts. Again the response is being collected. Third question, Tupperware not available in different sizes. Fourth question, Tupperware available in attractive colors. And the final question was Tupperware not value for money. So each one of the respondent provided their responses and I have collected and recorded their responses. So these are my responses. So how will I start with the analysis part of this data? There are many softwares available for analyzing the data. For example, Excel, SPSS and different other tools. But primarily for this video, I am just using the Microsoft Excel for Likert scale analysis, but in my upcoming videos I am going to use IBM SPSS for Likert scale analysis. So let's start that how we have to use the analytical part. When we are dealing with the data, especially the nominal data here as we are having, and one thing that comes to a mind is कि हमें frequency का use करना है, हमें frequency table generate करना है. But in Microsoft Excel, we can go through the pivot tables, but that will become a intermediate Excel exercise that is not for the beginners. So therefore, I am just stick to the basic one. So therefore, मैं आज केवल वो एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो आपको आसानी से इनिशियली समझ में आ जाए. तो हमें आपको पता है कि ये पहला क्वेश्चन है और उसके रेस्पॉन्सेज है. ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन. तो मैंने एक नीचे टेबल बनाई हुई है, आप देख सकते हैं
यहां पर मैंने दो टेबल्स आपके सामने हैं। पहला है रेस्पॉन्स, किसी भी रेस्पोंडेंट का जो रेस्पॉन्स होगा वो इन 5 ऑप्शन में से कोई एक होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। क्योंकि आप देखें हर क्वेश्चन में यही 5 ऑप्शंस, किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, हमें ये पता करना है फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट हु said they are strongly disagree that Tupperware products are not a state of art technology. वो disagree हैं कि state of art technology नहीं है। तो हमें numbers count करने हैं कि कितने लोगों ने ये बात कही। तो इसके लिए हम एक्सेल का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन COUNT, काउंट इफ। जब मैं काउंट इफ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑप्शन आएगा मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर दो चीजें मुझसे पूछी जाएंगी। रेंज सबसे पहले पूछा जा रहा है, रेंज क्या होगी। रेंज मेरी क्या है, 1 रेस्पोंडेंट से लेकर 29th रेस्पोंडेंट तक। क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्या सर्च करना चाहता हूं मैं, क्या काउंट करना चाहता हूं मैं। जिन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्री कहा ये काउंट करना मुझे, क्लिक ओके। केवल एक रेस्पोंडेंट है 1 जिसने ये बात कही। तो मुझे एक चीज यहां पर क्लियर है कि मेरी जो रेंज है वो इन सभी के लिए एक ही रहने वाली है। इस क्वेश्चन के लिए ये मेरी रेंज है 1 to 29 है और वो सभी के लिए सेम रहेगी, डिसएग्री के लिए, न्यूट्रल के लिए, एग्री के लिए, स्ट्रांगली एग्री के लिए। तो मैं यहाँ पर जहाँ B2 to B30 जो मेरा ये सेल सिलेक्शन है इसको फ्रीज कर देता हूँ F4 से। आप देख रहे हैं डॉलर का साइन आ चुका, एंटर। अब मैं केवल क्या करूंगा, इसको ड्रॉप डाउन कर देता हूं, फॉर्मूले को कॉपी करके आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं एज फॉर्मूला। तो आप ये देख सकते हैं कि डिसएग्री किसी ने भी नहीं कहा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, न्यूट्रल 7 है, एग्री 14 है, स्ट्रांगली एग्री 7। टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट मुझे पता है 29, तो इसका सम भी कितना आना चाहिए, 29 ही आना चाहिए। तो अगर मैं सम निकाल लूं यहां से तो आप देखें 29 ही आएगा। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो गया। सिमिलरली मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए कर लेता हूं, इक्वल साइन काउंट इफ। लेकिन यहां पर काउंट इफ जैसे ही मैंने किया तो काउंट इफ करते ही मेरे पास में यहां पर एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब फिर दोबारा मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज मेरी क्वेश्चन नंबर 2 की यहां पर C2 से C29 तक है, फिर कॉमा, और क्या सर्च करना है मुझे, स्ट्रांगली डिसएग्री, एंटर। केवल एक पर्सन है जिसने ये बात कही, मैं इसको दोबारा से फ्रीज कर देता हूं क्योंकि ये वैल्यू मेरी सभी के लिए सेम रहने वाली है। फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया और नीचे वाली रेंज में पेस्ट कर दिया। उसी तरह से यहाँ भी मैं टोटल निकाल लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये टोटल 29 यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से मैं सभी के लिए कैलकुलेट करता हूँ, सभी क्वेश्चन के लिए। मेरे पास 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के लिए मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, नेक्स्ट 3 के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सभी के लिए यहाँ पर ये कैलकुलेट कर दिया है। सभी क्वेश्चंस के लिए इसी तरह से मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया और मेरे पास में अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल आ चुकी है कि कितने लोगों ने स्ट्रांगली एग्री कहा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए, लाइक दिस। और टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट भी मेरे पास आ गए। अब मुझे चाहिए परसेंटेज, मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ सिंपली। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, सेम टेबल है मेरे पास में, इक्वल साइन स्ट्रांगली डिसएग्री फर्स्ट क्वेश्चन में कितने लोगों ने कहा, 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने रेस्पोंडेंट है मेरे, 29, 3.45% है। तो 0 के टाइम में 0% है, आप देख सकते हैं। और 7 लोग हैं आउट ऑफ 29, कितने परसेंट हो गए, 24.14। 14 है आउट ऑफ 29, 48.28। और सिमिलरली 7 है आउट ऑफ 29, 24.14। इसी तरीके से मैं यहां भी निकाल लेता हूं, इक्वल साइन 1 डिवाइडेड बाय 29, 3.45%। इसी तरह से यहां पर
13 divided by 29 equal sign 0 divided by 29 और finally 4 divided by 29. This is this one 4 divided by 29. अगर मैं इन सबका टोटल निकालता हूं तो मेरा वही 100% रिजल्ट आना चाहिए। आप देख सकते हैं सभी का जो रिजल्ट है वो 100%। तो यहां तक मेरी फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैलकुलेट हो चुकी हैं। ऊपर मेरे पास नंबर्स में है टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट जिन्होंने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री का इंडिविजुअल क्वेश्चन वाइज, और सेकंड टेबल में मेरे पास में परसेंटेज वाइज है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ये एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज हाउ टू प्रेजेंट दिस डेटा। देखिए डेटा जब तक विजिबिलिटी उसकी अच्छी नहीं होगी तो आपका डेटा अट्रैक्टिव नहीं होता, रीडेबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको ग्राफ्स का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं यहाँ एक सिंपल एक छोटे सा ग्राफ बनाता हूँ क्वेश्चन वाइज। मेरे पास रिस्पॉन्स है, स्टेट ऑफ आर्ट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका परसेंटेज है, तो मैंने रिस्पॉन्सेज 5 ही है मेरे पास। और टपरवेयर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं, कितने लोग क्लेम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। तो मैं केवल इस दो कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया, बस मैं गया इंसर्ट में। इंसर्ट में मैंने यहाँ पर एक बार ग्राफ मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। आप ग्राफ कोई भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे ग्राफ अवेलेबल हैं। बार है, मैं ये ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें मुझे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, तो मैं इसको Q1 कर देता हूँ ताकि ये मुझे क्लियर हो जाए। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने, अब ये मुझे क्लियरली विजिबल है। मैं इसको एक नए उस पर ले जाता हूँ शीट पर ताकि मुझे और क्लियरली विजिबल हो जाए। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। और आप देख सकते हैं ये डेटा मेरे पास एक नई उस पर आ गया है। इसको थोड़ा सा मैं रीडिज़ाइन करना होगा मुझे। एक तो उसमें मुझे डेटा लेबल्स चाहिए, ग्रिड लाइंस में हटा देता हूँ, और उसके बाद में मुझे डेटा लेबल्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डेटा लेबल्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं वो उनको मैं लगा लेता हूँ। मुझे परसेंटेज चाहिए, आउटसाइड एंड कर देता हूँ। ये देखिए मुझे अब क्लियरली विजिबल भी है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ताकि मुझे और क्लियरली ये विजिबल हो जाए। सॉलिड फिल में क्लिक करता हूँ, एक डार्क कलर ले लेता हूँ, और टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर और एक वाइट कलर ले लेता हूँ। जो टेक्स्ट का साइज है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ 15। अब ये देखिए मुझे क्लियरली विजिबल है। बार्स को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे हर जो कलर्स हैं बार्स के वो अलग अलग रहें, तो मैंने हर बार का कलर अलग अलग दे देता हूँ मैं, ताकि मुझे क्लियरली विजिबल हो कि किस बार में क्या चीज़ मुझे दिखाई जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ये बना दिया। और नीचे मेरे लेबल्स हैं सभी चार्ट से रिलेटेड। यहाँ मैंने लेजेंड्स भी दे दिए हैं ताकि मुझे ये क्लियरली विजिबल हो इसका क्या मतलब है। ये मेरे चार्ट का टाइटल है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका साइज मैं 18 कर देता हूँ ताकि ये मुझे विजिबल हो जाए। इसको भी कलर दे देते हैं थोड़ा सा, उसके लिए मुझे टेक्स्ट ऑप्शन को वाइट कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा ये चार्ट तैयार हो गया। तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर चार्ट है जहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन 1 में
48.28% लोग हैं, those are saying that they are completely agree with the fact that Tupperware manufactures state-of-art technology products. Secondly, the 24.14% people or the respondent are claiming that they are strongly agree with the fact that the Tupperware is producing a state-of-art technology products. But only few percent, especially 3.45, around 4% people are claiming that they are disagree with this fact that Tupperware is producing state-of-art technology products. So majority of the respondents are with the fact that the Tupperware produces state-of-art technology products. So this is how you will write the interpretation of this particular thing. Moving ahead to the next one. Now I come back to the data. अब आपको एक नया ग्राफ बनाना है तो अगेन आप कंट्रोल दबाकर रखिए, कंट्रोल कमांड. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन. कंट्रोल कमांड दबा के रखना है आपको और आप सिलेक्ट कर लीजिए पहले आप किस डेटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं. आप रिस्पॉन्सेस तो यही लेना चाहते हैं, लेकिन अब लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 को. इंसर्ट पे जाइए, आप चाहें तो रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर सकते हैं. आपकी बार मैं इस वाले चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं. चार्ट को मूव कर लेते हैं. ये चार्ट मेरा नई शीट पर आ गया है. तो यहाँ पर मेरे पास एक और चार्ट अब मिल गया मुझे, जहाँ पर मुझे क्लियरली ये बात विजिबल है कि मेरा जो टपरवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है. स्ट्रांगली एग्री. मेरा क्वेश्चन था टपरवेयर प्रोडक्ट्स आर आइडियल फॉर गिफ्ट एंड द रिस्पोंडेंट्स आर स्ट्रांगली एग्री विद दिस फैक्ट. हाउ मेनी परसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट. मैं डेटा लेबल्स यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि मुझे क्लियरली विजिबल हो जाए कितने परसेंट ऐसे लोग हैं. आप देख सकते हैं 58% are strongly agree, 24% are agree with this fact, and around 7% respondent are agree with this fact. So majority goes with that Tupperware could be used for the gifting. But at the same time 7%, 7 and around 4%, 11% are either disagree or strongly disagree with this fact that Tupperware product could be used for gifting. So likewise we can prepare graph and interpret these results for identifying the fact that how respondents are behaving for a particular brand like this. So this is how you could use this kind of research analysis for brand awareness and to judge how the effective a brand particular brand is. उसके अलावा ये सभी एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक एक ग्राफ जो मैं सेव कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास आ रहा है. मैं फर्दर इसको कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ व्हाइल आई प्रिपेयर माय रिपोर्ट. और रिपोर्ट में मैं क्लियरली इन ग्राफ्स को इलस्ट्रेट कर इंटरप्रेट कर सकता हूँ और अपने रीडर्स को ये बता सकता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है. सो आई होप यू लाइक माय वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.